Good morning, everybody. मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व है and I'm an orthopedic surgeon. Right? Thank you. I'll uh, I'll talk about the backdrop today, right? So ये लोग पीछे हैं मेरे, right? And मैं इन सब का एक representative हूँ जो सामने खड़ा हूँ. So right? So this is what I always say कि for all of them, each of them is very precious, right? And they have traveled the journey. I know we all were here, and this is one of the most difficult time. I'll talk about my time after I introduce, not introduce, just take their name in the morning. अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं. So for them, this is what I want to speak, right? I have been blessed throughout my life to be surrounded by fantastic human beings. हमेशा सब अच्छे ही थे आसपास. जब समझ नहीं आया कोई अच्छा नहीं था तो खुद को ठीक किया तो और अच्छे लगने लगे. So it was very easy for me to live life, right? So इन सब के लिए जो पीछे खड़े हैं, ये एक शेर है. माना है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं. हमारी महफिल सजती है उन लोगों से जिनके कदमों पे कई ताज पड़े रहते हैं. Right? So some of them might meet you in the evening today, but right, I wish so. And but right in the center, my dear friend and your most beloved Goga Bhai. All right, please clap for him. Right. Whenever we are looking for some help or guidance, right, the man with the statistics, Dr. Vivek Jain sir. You know, आप कितने भी बड़े हों पर अगर आपसे कोई बात नहीं कर सकता उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सो जो अप्रोचेबल हो वही इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो आई ऑलवेज से जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा, राइट? सो अमंग्स दोज, राइट, स्पर्श इज वेरी वेरी क्लोज इन दैट एस्पेक्ट, यू नो, ही इज ऑलवेज रेडी टू बी फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? देन यूनिवर्स बॉस अबव डॉक्टर गोगा, Praveen Tripathi, right? So Dr. Praveen is like a brother to me, and we call him Universe Boss because any universal problem he has a solution, right? And obviously he has ताली बजा दो यार, क्या problem है? So he always is connected to the students, and that's why obviously he has the highest YouTube followers amongst all of us. All right. अब मैं सब्जेक्ट वाइज चलता हूँ. पिछली बार एक नाम मिस हो गया था तो मैंने उसको चेपा था उस वीडियो में, तो मैं सब्जेक्ट वाइज चलूँगा, राइट? सो दिस इज प्रियंका फॉर एनर्जेटिक माइक्रोबायोलॉजी. प्लीज क्लैप फॉर हर. शेरो शायरी के बादशाह, द एनर्जेटिक डॉक्टर श्रीकांत सर. द मदर ऑफ बिलीवर्स, Smiley ma'am, she takes care of biochemistry and she's very committed. Actually, photograph का एक problem होता है, पहचाना नहीं जाता, right? So Pooja ma'am, she takes care of physiology, and you know, these are some superpowers. So Rena ma'am, she is very committed in gynae obs, and इनमें से कोई भी यहाँ नहीं है, right? So मैटर भी नहीं करता ना, सामने बात करने की वजूद नहीं होता, पीछे ही बात करने की इंपॉर्टेंस होती है. सो आप जो पीछे बोलते हैं वो सच होता है. सो दे आर एक्चुअली पीपल, यू गो टू देम एंड दे विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर यू. कभी भी ऐसा नहीं है कि इनकी डिक्शनरी में ना है. दे आर ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग दैट यू विश टू डू, राइट? आनंद, ही टेक्स केयर ऑफ pediatrics, and if Praveen has got maximum followers on YouTube, he is the king of Instagram, right? So that's what he takes care. My batchmate, Dr. Atul, right? He takes care of forensic. Dr. Praneeth, now we have some clinicians there, right? So they are the guys who are practicing, and that's why they have that knack of picking up the clinical material, which is going to come in the questions. Dr. Praneeth for ENT, Dr. Amrit for surgery, right? These are some names who have got really big following as term of clinical material and the students, right? Dr. Dilip for medicine. ये
ये शाम को पढ़ाना शुरू करते हैं, सुबह तक पढ़ाते ही रहते हैं. But that's what, he's somebody who wants to deliver the best to the students. Dr. Gaurav Nagpali has a hospital in Delhi and takes care of Hafta, right? And then I always say that, कि खुशी से पढ़ाना एक अलग बात होती है, नाच के पढ़ाना एक अलग बात होती है, सबको नचा के पढ़ाना एक अलग बात होती है. So Janvi delivers great content on the beats, right? And that's Srinivas, and he takes care of Dharma, and he comes from Hyderabad. All right, so these are our 19 teachers, and ऑर्थो हमेशा मैं भूल जाता हूँ, वो मैटर भी नहीं करता, राइट? बाकी 18 से भी काम चल जाएगा. सो बट लेट्स कम टू एंट्रेंस एग्जाम्स. एंट्रेंस एग्जाम्स के 2 रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1, राइट, ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस. किसी भी क्वेश्चन में बिना ऑप्शन देखे मार्क करना गलती होगी. रूल नंबर 2, ऑलवेज रीड ऑल द सब्जेक्ट्स. ऑलराइट, बेसिक कोई पूछता है कौन सा सब्जेक्ट मिस करता हूँ, सो मैं बोलता हूँ इफ यू मिस अ सब्जेक्ट देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग एन एग्जाम. इन माय करियर I have seen that if you are very good in 2 subjects, you will not clear it. If you are average in 19, you can be rank 1. So remember this rule, right? You should not be very good in any one of them. Don't try that. कोई भी नहीं हो पाएगा. There is no favorite subject. यहाँ love life नहीं है. यहाँ selection है. You have to get through this hurdle. Simple है ये. All right. So you just have to cross it, and that's what is 19 subjects. Finish it off. और सबकी स्टोरी इतनी ग्लोरियस नहीं होती जैसे रवि ने बताया, जैनब ने बताया. हमारे ऐसे भी होते हैं, राइट? सो I go back to when I started preparing. So I remember that in my college the preparation began with a spark. हमारे फ्लोर पे हमारे एक सीनियर रहते थे, he got rank 17 in PGI. एकदम से मेरे कॉलेज का माहौल चेंज हो गया. माई कॉलेज इज़ वेरी क्लोज टू दिस प्लेस. इट्स कॉल्ड एज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. सो आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, राइट? सो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया. हम लोग सेम वॉशरूम यूज़ करते थे, सेम फ्लोर पर रहते थे, सेम जगह खाना खाते थे, और हमारे में से एक व्यक्ति, राइट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्वालिफाई कर गया, और वो भी 17th रैंक. दैट्स टू विद द इंटर्नशिप वाज गोइंग डाउन. सो आई डिडंट नो कैसे हुआ ये. तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे पढ़ो, ध्यान दो, क्वेश्चंस को पढ़ो, रिवाइज करो, जहाँ भी हो जब ब्रश करते हो तो वहाँ पे 2 पेपर चिपका दो, ब्रश करते समय वो टेबल्स पढ़ो, एक डायरी बनाओ, उसमें चीज़ें लिखना शुरू करो, राइट? एंड में हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहो. मतलब दिमाग तुम्हारा हर समय ये रहना चाहिए कि हम कुछ पढ़ें. जो भी है, कोई तुम्हें मिले तो उसको पकड़ के उसको अपनी परेशानियाँ बता दो. जो भी टेबल याद नहीं हो रही, पकड़ के कोई भी मिले उसको बता दो. रिक्शे वाले से बात करना शुरू कर दो. कुछ भी करो, बट तुम बताना शुरू कर दो. बस पढ़ते रहो. हर समय तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये खत्म करना है. बिकॉज इफ यू डू दैट, हो जाएगा. सुनना आसान होता है, करना मुश्किल होता है. बहुत ऑब्वियस है ना? अगर ऐसा होता तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाता. कहाँ होता है? नहीं होता, राइट? सो बट क्या हुआ कि सबने पढ़ाई शुरू करी, हम लोगों ने, हमारी इंटर्नशिप आई, हमने कुछ रूल्स फॉलो करे, कुछ नहीं करे. और जैसे मैं था, मैंने अपने निमोनिक्स बनाने शुरू करे और लोगों को बताना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया. अपना स्वैग था, अपने को लग रहा था अपन ही अपन है, राइट? एग्जाम देने गए ऑल इंडिया का, तो समझ आ गया क्या हुआ. फिर दिल्ली का एग्जाम आया. यहाँ ऐसा होता था कि उस टाइम पे एक दिल्ली पीजी का एग्जाम होता था, और जिस दिन दिल्ली पीजी का एग्जाम होता था उस दिन रात को ऑल इंडिया का रिजल्ट आता था. somehow it was like this. सो दिल्ली पीजी का एग्जाम दे के आया, तो वहाँ पे रैंक ऐसे आती थी, टक 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 कॉलेज में. तो मुझे पता था मैं क्या करके आया हूँ. आई वॉज पैकिंग माई बैग, घर जाना था, क्योंकि मेरे अंदर जिगरा नहीं था जो शाम को होने वाला था उसका. दिवाली होती थी कॉलेज में, क्योंकि मुझे पता था कि ऑल इंडिया में कुछ हुआ नहीं, डीपीजी में होना नहीं. अंदर से पता होता है. अच्छा, एक और बात है, एग्जाम सबका अच्छा होता है, रिजल्ट सबका अच्छा नहीं आता, है ना? मतलब ये सच है. एग्जाम किसी का बुरा हुआ ही नहीं, बट अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो फिर रिजल्ट खतरनाक आएगा. क्योंकि एंट्रेंस है बाबू, एंट्रेंस अच्छे नहीं होते. समझ नहीं आता हमारे को क्या हुआ हमारे साथ. वो रिजल्ट में एक नंबर आता है तब समझ आता है. तो रात को घर पे बैठा हुआ था, तो घर पे बैठा था, घर का फ़ोन बजा, ट्रिन. उस टाइम पे लैंडलाइन होता था. फ़ोन उठाया, राइट? सो आवाज़ आई दैट जो है मेरा जो रूममेट है, ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 3.
गेम खत्म, राइट? सो फिर आई वॉज रोल नंबर 11 इन माई क्लास, रोल नंबर 10 वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर. डू यू अंडरस्टैंड द पेन? आपको नहीं पता होगा ये. आप वाइवा देने जाओ और आपसे पहले कोई यूनिवर्सिटी टॉपर वाइवा दे, गेम खत्म. तकलीफ होती है भाई, क्योंकि लैंग्वेज कनेक्ट नहीं हो पाती. कई बार तो लोगों ने पूछा बेटा आप एमबीबीएस के बच्चे हो ना, और उसने बहुत मतलब वो अलग ही था, उससे कभी मेरी दोस्ती हुई नहीं. मैंने कहा पेपर दिखा दे, उसका लंबा हाथ था, हाथ छुपा के लिखता. ओ भाई मेरा मन करता था ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. बट दिस इज हाउ इट गोज, राइट? सो अलग होते हैं ये थोड़े, फर्स्ट रो में बैठे होते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा, अलग से होते हैं, मतलब ना बिल्कुल चुप चुप रहते हैं. एग्जाम इनके खराब होते हैं, रिजल्ट इनके खतरनाक आते हैं. फिर बोर्ड पे इनके नाम भी दिख जाते हैं आपको कॉलेज के, है ना? वो बोर्ड होता है ना डीन के रूम के सामने. मैंने एक बात की थी एक व्यक्ति की यहाँ पे, तो वैसे होते हैं वो. पीपल अराउंड देयर रोल नंबर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, उनका दुख समझ नहीं पाते. अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी, हम दोनों का नाम भी सेम था. पूरे कॉलेज में 2 ही नाम थे अपूर्व, वो भी एक ही बैच में, और वो यूनिवर्सिटी टॉपर. दुख जिंदगी भर रहेगा. एनीवेज, लाइफ वाज लाइक दिस. मेरे को ये चिंता नहीं थी कि माय रूममेट वाज रैंक 3. मुझे था कि रैंक 1 कौन है. होप थी मेरे अंदर ना, अगर रूममेट 3 है तो 1 और 2 तो मैं ही होऊंगा. एनीवेज, रैंक 1 तो वही था. The margin between rank 1 and rank 2, which has never been defeated in this country, is so huge that he created. अभी इस बात को 22 साल हो गए, 21 साल हो गए, कभी कोई तोड़ नहीं पाया. Right? That's what he was. He was a league. He was a different league. All right? So सोचो मेरी बेइज्जती कितनी हुई होगी MBBS में. Anyways, so this was the next was my turn. फिर फोन आने शुरू हो गए कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का रैंक 15th है, इसका रैंक ये है. एकदम से बाहर लग गई. I was very happy. I was happy because my friends and people around me were qualifying. But suddenly फिर वो हुआ जो पसंद नहीं आता लोगों को. मेरे पापा ने पूछा तुम्हारा क्या हुआ? And trust me, I was so happy that मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मेरा क्या हुआ. So मैंने कहा चलो कोई नहीं, देख लेते हैं. कंप्यूटर ऑन किया, रोल नंबर डाला. वैसे तो कभी खुलता नहीं, पर इस समय पिताजी पीछे खड़े हुए थे, मैं बैठा हुआ था, और इस बार खुल गया. नेवर डू दिस. नेवर एवर पुट योर रोल नंबर्स इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. यू माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैटास्ट्रॉफ. एनीवेज, सो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आया, तो पापा ने पूछा इतने बच्चों ने एग्जाम दिए, बहुत ज़्यादा नहीं है ये? यू कैन क्लैप. स्टार्टिंग की रैंक्स अकाउंट नंबर जितनी होती हैं, अकाउंट बैलेंस जितनी रैंक के लिए मेहनत करना पड़ता है. मैंने कुछ बोला नहीं, फिर उन्होंने बोला इज इट ट्रू, ये तुम्हारी रैंक है? आई गॉट अप एंड आई लुक्ड इन हिज आईज. जिगरा था मेरे अंदर. उन्होंने बोला कि तुम कर क्या रहे थे 1 साल से? मैंने बोला मतलब? कहते बेटा ये तुम्हारी रैंक है, तुम्हारे आसपास बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं, राइट? तुम कर क्या रहे थे 1 साल से? तो मैंने बोला पढ़ रहा था. माय फादर केप्ट अ हैंड ऑन माय शोल्डर एंड सेड आई डोंट थिंक सो. मेरा बेटा अगर पढ़ता तो ये हाल थोड़ा होता. सो मैंने बोला आप कहना चाहते हो मैंने पढ़ाई नहीं करी? मैंने पढ़ाई नहीं करी? आपको क्या पता, आप डॉक्टर हो ना, आपको क्या पता है, राइट? सो उन्होंने बोला बेटा इतना तो पता ही है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बाप हो, इतना तो दिख ही रहा है कि तुमने क्या किया है. सेम सरनेम ना, तुम्हें बताया था मैंने, दोनों का सेम सरनेम. सो मैंने बोला देखिए ऐसा है, आई डोंट थिंक सो कि यू हैव द राइट एटीट्यूड हियर. आपको समझ नहीं आ रहा है, ये एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पे ना आपने तो मेडिसिन की नहीं, आपको क्या पता है एमबीबीएस करी नहीं, आप मुझे समझा रहे हो आज, राइट? सो मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के. तो मैं अपने कमरे में चला गया एटीट्यूड में. पापा अंदर आए कमरे में, आके बोला बेटा तू जाएगा कहाँ, तुझे रखेगा कौन, खर्चा कैसे उठाएगा? मैंने कहा हाँ सॉरी. आराम से बैठ गए फेस टू फेस. मुझे लगा अब जाए बंदा, निकले यहाँ से, पर निकला नहीं. वो बैठ गया वहाँ पे सामने. बोला बेटा तुम ये जो बातें कर रहे हो
तुम्हारे को लोगों से पूछना चाहिए जिनका सिलेक्शन हुआ है कि पढ़ाई कैसे करते हैं, और वो रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि तुम समझ पा रहे हो कि ये रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, पर आज तुम्हारा व्यवहार डिसाइड करेगा कि तुम्हारे अगले 20 साल 25 साल तुम्हारा नाम कैसे रहेगा। और तुम तो मुझे बोलते हो कि मेरा नाम एक दिन देश में होगा और मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसे बनोगे? तुम तो यही मानने को तैयार नहीं हो कि तुमने इस साल पढ़ाई नहीं करी, अभी भी नहीं रुके, वो बेइज्जती लगे हुए। इस समय रोल नंबर 10 मुझे देवता दिख रहा था। एनीवेज दैट मैन सैट इन फ्रंट ऑफ मी एंड सेड, देखो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें दिन रात पढ़ना होगा, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे साथ ठीक होगा, बट तुम्हें पढ़ना होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर ये तो आप कम से कम 10 बार बोल चुके हो पिछले 5 मिनट में। तो उन्होंने फिर ना एक अजीब सी चीज़ करी, जैसे वो नहीं होता 3 इडियट्स में, पर्स निकाला, उसमें अपनी एक फ़ोटो निकाली और देखो देखो ये तुम्हारी फ़ोटो है, मैं अपने पर्स में रखता हूँ हमेशा। एंड आई जस्ट रिकलेक्टेड लास्ट ईयर, जब भी मुझे कोई फॉर्म भरना होता था, पापा फोटो देना, तो वो अपने पर्स से निकाल के एक फ़ोटो ये चिपका दे। सो ही ऑलवेज यूज्ड टू कीप लॉट ऑफ पिक्स इन हिज पर्स वॉलेट, हमेशा रखते थे। तो वो कहते थे एक दिन कहीं अच्छी जगह भी लगाएंगे इसको, कुछ बड़ा करोगे तो वहाँ भी लगाएंगे, तो मैं फ़ोटो बहुत सही रखता हूँ तुम्हारी। तो ऑलवेज उनके पर्स में मेरी फ़ोटो होती थी। कोई भी मांगता था, मेरे क्लिनिक में भी आज कोई मांगता था, निकाल के देते थे। एनीवेज उन्होंने बोला देख, दिस रिमाइंड्स मी दैट आई नेवर थॉट ऑफ अ किड आफ्टर यू, सो यू वुड हैव टू डू गुड दिस ईयर, राइट? एंड रुकना नहीं बेटा यहाँ पे। मानता हूँ कि एक ही सीट है, बट रुकना नहीं। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैं डॉक्टर तरुण से मिलने गया चंडीगढ़। I knew that this was the guy, and I always believe one guy can change your life. You don't need too many. अगर आप एक व्यक्ति की एडवाइस ले लो, काम चल जाएगा, राइट? सो मैंने जाके उनसे समझा, गेम समझा। तो गेम में ना सारी समरी यही थी कि इतना पढ़ो कि जब when you hit the bed एकदम से नींद आ जाए। सोने से पहले सोच के पढ़ो कि अगले दिन क्या पढ़ना है, जब उठो तो पता हो कि क्या पढ़ना है। बस मुझे मेन समरी यही समझ आई कि बहुत थक जाओ तब सो जाओ, उठो तो पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। दूसरा समझ आया कि एक दिन पहले जो पढ़ा है, अगले दिन पहले उसको रिवाइज कर लो आधे घंटे, एंड स्टार्ट अर्ली। ये छोटे छोटे सीक्रेट्स थे, कभी बदले नहीं। पता नहीं ये सीक्रेट्स थे कि नहीं, बट ये रूल थे। एनीवेज मैंने पढ़ाई शुरू करी। इस बार मैं घर बैठा एंड आई केप्ट माई हेड नो, मैं पढ़ता रहा। सिलेक्शन नहीं हुए, एक के बाद एक एग्जाम रिजल्ट खराब होते गए। सो आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, यार ये क्या है, हो क्या रहा है, राइट? आई केप्ट ऑन डूइंग इट। फिर एक दिन क्या हुआ, सीट की मैट्रिक्स आई। सो इन दिल्ली आई हैड शॉर्ट लिस्टेड कि मैं इन कॉलेज से ऑर्थो करूंगा। देयर वाज ओनली 1 सीट इन जनरल कैटेगरी फॉर ऑर्थो, मेरी लग ली। एक सीट के लिए आप कैसे फाइट करोगे? उस समय ऐसे सीट्स नहीं होती थी, एक सीट होती थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। सो आई वाज सिटिंग इन माय रूम, राइट, एंड डैड वॉक्ड, फिर से आ गए। अब क्या हुआ? सो ही लुक्ड एट द पेपर, ही सॉ द सीट्स, ही सेड अच्छा एक सीट है। सो मैंने कहा हाँ। सो दीज लाइन्स व्हाट ही स्पोक, ही सेड बेटा ये तो इंडिया की बात है, अब अगर पूरी दुनिया में भी अगर एक सीट होगी और जिस तरह से तू मेहनत कर रहा है, अगर अगले 3 महीने तूने और मेहनत कर ली तो किसी में दम नहीं है कि वो मेरे बेटे को सीट ना मिले। एंड दैट हैपेंड। And I lived for next 15 to 18 years with him, right? With a very simple motto that he always told me, that you have to work hard. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. My team knows all this. I was taking a class. I started at 8 a.m. Class got over at 10 o'clock, right? And I was tired, right? So my dad was standing and everybody was standing, and so कुछ सालों पुरानी बात है. So my team said कि somebody will drive me to home. So my dad said ऐसा क्या किया इसने, खुद चला लेगा गाड़ी. So it was after a 14-hour lecture. This is what he said. So he always said कि बेटा you have to work hard. वर्क हार्ड करोगे तो कभी हारोगे नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं होगे, राइट? सो इसमें एक बहुत सिंपल सा रूल है, राइट, दैट ही ऑलवेज टॉट मी, दैट तुम्हारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि तुम फिर से रीसरेक्ट सब कुछ कर लो. हमने वो एक फोटो से स्टार्ट किया था सेशन, जिसमें था एक स्टॉर्म, एक मैन विद अ पीस. सो दैट्स व्हाट इट सेज, एंड इट सेज जल गया सब, जल गया सब, बचा क्या है, बच गया मैं, जला क्या है. ऑलराइट, मुझे बस इतना ही बोलने के लिए बुलाया गया था. आई थिंक लेट्स वेलकम ज़ैनब, शी इज वेटिंग देयर, राइट, फॉर ऑल ऑफ यू.
for जोर से ताली बजाओ यार. She's been working hard for the last day of your session, right? And all the very best to all of you. खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और सब लोग खड़े हो जाओ ताकि हम एक बार एक गाना गाएं जो हमें बताएगा कि हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, राइट? सो आप सबको मेरे साथ बोलना है, आपने तालियां भी बजानी है, राइट? और मैं थोड़ा बोलूँगा और आपकी आवाज़ भी आएगी. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. Comes for all 6 days, and he especially came to Hyderabad so that I can come late and you guys are not bored and you guys are engaged and you guys are motivated right in the morning. So please, I would request all of you to stand up again once and thank him on all of our behalf. Thank you so much, sir. Thank you, sir. There is just so much. Thank you so much. There is so much to learn. सर कल बोल रहे थे कि मेरे से हार्ड वर्किंग कोई नहीं है, वो साफ झूठ है. बिकॉज इफ यू सी वॉट ऑल ही डज इन द डे, इट इज अनबिलीवेबल हाउ अ ह्यूमन बीइंग कैन डू सो मच. ही ऑपरेट्स, he runs OPD, he single-handedly runs all operations of cerebellum. He comes here to every class in the morning. He teaches. He takes care of his family, his team, all in one day and more. I don't even know what else he does. So thank you so much, sir. It's always an inspiration to see you and absorb and imbibe whatever I can. Thank you so much. So final day today. Lots to do. 10 subjects. Operations are run by 61 individuals and everything is done by a lot of people. And just tell you one thing, that she single-handedly made all the quick revision notes of cerebellum, looks at the question bank, right? I won't take that credit. I am just a drop in the ocean, which I spoke in the morning. They are all there, and she is the one harnessing everything. So don't give it to me. Thank you. Bye. Thank you, sir. So big day, just 10 subjects in one day. So let's give it our all. We will start immediately and we will be in 4th gear from the word go today. All right. I hope everybody is all set and all charged up. All right. Perfect.